Why spiritual people are priceless? Spiritual लोग priceless, expensive क्यों होते हैं? Expensive not in terms of money. यहाँ पे पैसों की बात नहीं की जा रही है. हमारा actual wealth is time and energy. आपको ये बात पता है कि हमारा actual जो wealth है हमारा time और energy है, हमारे पैसे नहीं. अगर हम अपना टाइम और एनर्जी पैसों में लगाएंगे तो पैसे आएंगे. अगर हम अपना टाइम और एनर्जी किसी और चीज़ में लगाएंगे तो वही आएगा. तो अब जिसकी जैसी समझ है वो वैसे ही अपना टाइम और एनर्जी लगाता है. तो अगर आपकी समझ सिर्फ पैसों तक सीमित है तो आप वहीं तक अपनी एनर्जी और टाइम को लगाएंगे और वही वापस यू विल गेट बैक इन रिटर्न. सो आवर एक्चुअल वेल्थ इज टाइम एंड एनर्जी. ओके, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में टाइम और एनर्जी लगाएंगे, अपने आप को ग्रो करने में लगाएंगे, तो दैट इज़ समथिंग परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म विच नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड्स दैट ईजिली और नॉट एवरी वन अंडरस्टैंड्स दैट डीपली. तो स्पिरिचुअल लोग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत प्राइसलेस होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज उन्होंने इतना इनर वर्क कर लिया होता है अपने आप में, इतना इनर वर्क कर लिया होता है. दे नो हाउ टू लिव बेटर. उनको अपनी खुद की ज़िंदगी कैसे एफर्टलेसली जीनी है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे डिसीजंस लेने हैं, उन्हें इस बारे में ज्ञान विजडम आ जाती है ऑलरेडी, बिकॉज दे हैव वर्कड सो हार्ड फॉर इट. ओके, so they know how to live better, they know how to do life better. Yes, that is what is spirituality all about. Spirituality doesn't mean going on mountains. Spirituality means staying in your own home house and being active in the world, and yet doing it effortlessly, doing it with all love, not being affected by by negative energies, and doing your own thing, not being that affected by other people or negative energies, or not being affected by your own fear, not being affected by your own doubts, and you moving high up the frequencies, vibrations. So a person like that जिसने इतना काम कर लिया अपने आप पर, ऐसे इंसान के साथ बाकी सब लोग भी रहना चाहेंगे. ऐसे इंसान के साथ बाकी सब लोग भी अट्रैक्ट होंगे, और लोग अट्रैक्ट होते हैं, राइट? जो सही इंसान होता है, जो बहुत स्पिरिचुअल इंसान होता है, people get attracted to it because they are more in their giving energies. क्योंकि वो ओपन होते हैं. They are sensitive to energies, they are sensitive to emotions and needs of the other people. तो वो ज़्यादा गिविंग एनर्जी में होते हैं क्योंकि वो बहुत ओपन होते हैं. तो आते हैं लोग, एडवांटेज भी लेने आते हैं, not always in a malicious way. Basically they're sleepwalking, they're literally sleepwalking. Their eyes are closed and they're just going about life. What they want, everybody, वो people who are sleepwalking, वो सिर्फ temporary solutions चाहते हैं. तो temporary solutions के लिए they come in your light, they come into the light of a spiritual person. Okay, and because that such a person is in more of his giving energy. और ये बात जो समझने की है, ये ज़्यादा समझने की एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए. मोर ऑफ दिस वीडियो इज़, आई गेस, अहेड ऑफ इट्स टाइम. आई डोंट नो, यहाँ पर इतने अभी ऐसे सोल्स आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे होंगे. And you know how light is. Light attracts the dark. So dark people are going to come to you, and not dark doesn't mean malicious or evil. But people are subconsciously, unconsciously, they know it. They know it that you have abundance of energy. They want to come and rest in your energy. They come and want to listen to you, or they want to interact with you. By interacting, you're actually exchanging energies. Okay, they want to be in your presence because they feel that cool, the comfort,
of being understood, of not being judged. But sometimes you have to take a step back. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही अपनी गिविंग एनर्जी में रहना है. कभी कभी आपको you have to take the back steps, because that's how it works. A person who is more, a spiritual person who is beyond the good and bad, good and bad नहीं, good, कई बार good लोग ईगो में होते हैं, कई बार चैरिटी कर रहे होते हैं तो लोग ईगो में चैरिटी कर रहे होते हैं. They are like, I am the one who is doing it. जब तक जब तक आपका वो डूअर का भाव नहीं गया है, तब तक you are not a spiritual person. I'm sorry. And अभी डूअर का भाव कैसे जाएगा? तो अगर मैं जैसे वीडियो में बोल दिया और अब आप सोचने लग गए कि ठीक है मैं डूअर नहीं हूँ एंड कुछ भी करोगे और आप ये सोचोगे मैं डूअर, ऐसे नहीं होता है. इट्स नॉट अ कंसेप्ट टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, इट्स कंसेप्ट टू बी रियली एक्सपीरियंस्ड कि आप कैसे डूअर नहीं हो. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन. क्या हम डूअर नहीं हैं? नहीं, आप डूअर नहीं हो. दैट इज़ द रियलिटी एक्चुअली. लेकिन जब आप डूअर बनते हो, व्हेन यू बिकम दैट डूअर, तब आप अपने लिए चीज़ें बहुत ख़राब कर लेते हो. यू एक्चुअली डैमेज द थिंग्स फॉर योर ओन सेल्फ. यू एक्चुअली interfere with the flow. All right, so that is the difference. So a spiritual person is somebody who is beyond the good and the bad. ठीक है. क्योंकि वो सोल की पुकार सुनते हैं. ठीक है. गुड और बैड दोनों प्रोग्राम्ड होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए. क्योंकि किसी को अपना सोशल रेपुटेशन मेंटेन करनी है, सो ही माइट बी डूइंग चैरिटी. या किसी को इलेक्शंस में लड़ना है, तो ही माइट बी डूइंग चैरिटी. दैट इज ईगो. ओके, इट कम्स विद अ रीजन. Somebody is being bad because he has, of course, his selfish reasons or whatever you want to call it. So what I'm really trying to say is that good and bad is, it's kind of an ego thing only. Okay, तो गुड और बैड दोनों एक ही कैटेगरी है देखा जाए तो. एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, स्पिरिचुअल होना कहते हैं. एंड उस कैटेगरी में आप उनके अंदर डूअर का भाव नहीं रहता. यू आर डिवॉइड ऑफ दैट डूअरशिप. यू आर नो लॉन्गर अ डूअर. एंड ये बात आप यहाँ से समझ नहीं सकते हो, यह बात आपको एक्सपीरियंस करनी है. आप तभी स्पिरिचुअल पर्सन कहलाएंगे. और कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, यू डोंट हैव टू टेक केयर. दिस इज़ योर रियलिटी. ओके, लाइक डोंट गो आफ्टर all those. But that is exactly the two categories are. It's not, I always say there are not two categories, good and the bad, or the categories are stupid and intelligent. Actually, the categories are stupid and intelligent. So stupid categories में good and bad people होते हैं और intelligent category में spiritual people होते हैं. क्योंकि good and bad वाले लोग हमेशा सोसाइटी से ड्रिवन होते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो सोसाइटी में रहते हैं, तो वो सोसाइटी के हिसाब से काम करते हैं. लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन वो अपने सोल के हिसाब से काम करता है. और दूसरे पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम द ईगो और वर्क टू लिव इन अ सोसाइटी, आर गवर्नड बाय पीपल अराउंड देम. जो ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को, जो जो कोई टाइम नहीं देख रहे हैं, कोई वक्त नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ वो कर रहे हैं जो उनका सोल उन्हें बोल रहा है, वो सिर्फ वो कर रहे हैं जो उनकी आत्मा उन्हें बोल रही है, वो सिर्फ वक्त की पुकार सुन रहे हैं. दे आर लिसनिंग टू द टाइम. ओके, सो पीपल लाइक दीज who listen to time are spiritual people. What is that universe is wanting from them right now? What is the work that needs to be done right now? What is the need right now for the collective? What are the things that needs to be done? So people like these, who are in their, who are more or less spiritual, are governed by time. काल उन्हें चलाता है. ठीक है, उन्हें सोसाइटी नहीं चला सकती है, उन्हें भगवान चलाता है. उन्हें कोई फैमिली, कोई एज बार नहीं होता है उनके लिए,
कोई कुछ नहीं, दे आर गवर्नड बाय देयर ओन थिंग्स, बाय देयर ओन सोल। एंड इस वजह से जो ईगो वाले लोग होते हैं, जो गुड और बैड में फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि स्पिरिचुअल लोग पागल हो गए हैं। दे फील दैट the spiritual people have gone nuts, they have lost it, they don't know what they're doing, like this is not how you do things. And so अगर आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं आप पागल हो, तो that means you are intelligent. I mean, still there could be some exceptions, so and maybe you can get a checkup. There are a lot of spiritual people also who are hallucinating out there, thinking that they are spiritual people. तो ऐसे भी होते हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी कुछ समझनी ही पड़ेगी, और कोई आपके लिए समझा नहीं सकता आपको आपकी कैटेगरी, ठीक है। और बाकी जो होता है वक्त ही बताता है, अगर आपको कि आप कौन सी कैटेगरी में थे और कौन सी कैटेगरी में रहे हो, बहुत सी चीज़ें तो वक्त ही बताता है। तो विद टाइम सारी कैटेगरीज आने ही वाली हैं बाहर, आ ही जाती हैं बाहर, सच छुपाए नहीं छुपता, इट ऑलवेज कम्स आउट. So eventually you will get closer to your, who you were really. Were you really hallucinating? या फिर आप सच में स्पिरिचुअल पर्सन थे? स्पिरिचुअल स्कैमर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्कैमिंग करते हैं स्पिरिचुअल पर्सन बन के. ईगो वाले लोग उसमें फंसते भी हैं, क्योंकि आई डोंट नो, कई बार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो वो स्टिल इन देयर ईगो, practicing spirituality. तो आप कभी ईगो में रह के अपनी स्पिरिचुअलिटी नहीं कर सकते हो. You have to purify yourself, you have to purify yourself. Okay, so well, I started with why these spiritual people are actually very priceless, because ऐसे लोग जो इवॉल्व होते हैं, सब इनकी एनर्जी में आना चाहते हैं. कई लोग जो इनके आसपास के लोग होते हैं, वो इन पे दे वेरी को डिपेंडेंट ऑन दैम, वो इन पे डिपेंडेंसी भी डेवलप कर लेते हैं, राइट, बिकॉज दे आर द वंस हु आर लाइट, हु कैन सी थ्रू. वो प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड देख सकते हैं, वो चैलेंजेस के बियॉन्ड देख सकते हैं, वो लोगों के बियॉन्ड देख सकते हैं. तो ऐसे लोगों के पास सारे लोग रहना चाहते हैं, कि एनर्जी में रहना चाहते हैं, कि एनर्जी फील्स राइट, इनकी एनर्जी फील्स गुड, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. लेकिन कभी कभी स्पिरिचुअल लोगों को वक्त की पुकार आती है. दैट मीन्स समटाइम्स दे शुड ऑल्सो नो व्हेन टू बैक ऑफ. उन्हें बैक ऑफ करना भी आना चाहिए, बिकॉज योर सोल इज़ वांटिंग दैट फ्रॉम यू. एंड सिंस spiritual people are more open to energies, more sensitive to energies, more sensitive to the needs of the people, the real needs, लोग खुद अपनी नीड्स, अपनी स्पिरिचुअल नीड्स से अवेयर नहीं होते हैं. लेकिन जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है, वो दूसरों की स्पिरिचुअल नीड्स, दूसरों की दूसरों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसने खुद अपने अंदर अपने आप को बहुत अच्छे से समझा होता है. एंड हम सब एक ही तो ब्रीड हैं, वी आर ऑल वन ब्रीड, राइट, वी ऑल आर होमो सेपियंस, राइट. सो इफ़ यू हैव सीन योर सेल्फ डीप इनसाइड, तो आप दूसरे इंसान को भी बहुत अच्छे से देख सकते हो. सो एक स्पिरिचुअल पर्सन इज़ वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू टू एनर्जीज, टू गुड एनर्जीज, टू प्योर एनर्जीज. यस, and so he is aware of the needs of the other people. Yes, but sometimes he is asked to to back off. Sometimes he is asked to back off, so he or she should not feel that conflict. He or she should trust himself enough to hear or to respond to that call that has come from inside. So yeah, this video is more or less for a spiritual person, and not everyone is going to get it, I guess. I think this video is more ahead of a time. I don't think so. Itne spiritual log aa bhi gaya. Of course, there are a lot of spiritual people out there, but still, इतना deeply कोई इस बात को समझ सके, I don't know.
I think this video is ahead of its time. Maybe if for somebody in the future it's going to be useful, who knows. So yeah, I just wanted to tell that learn to trust yourself. If you feel called to not give your time to somebody, don't. If you feel called to not be around somebody, don't. Even if that person is very nice to you, even if you trust that person,